السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بڈگام ضلع کے نربل کے پی ایم بوائز مڈل اسکول مزامہ میں تجربہ کار ماہر تعلیم عبدالحمید راٹھوڑ کی ممتاز خدمات اور ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں معززین کی موجودگی کا مشاہدہ کیا گیا، جن میں مہمان خصوصی محمد شفیع، صدر JKTF-UT اور زونل ایجوکیشن آفیسر ناربل غلام مصطفیٰ کے علاوہ دیگر معزز عہدیداران اور کمیونٹی ممبران شامل تھے۔ اس تقریب کا اہتمام جموں کشمیر ٹیچرز فورم زون ناربل نے مشترکہ طور پر اسکول کے عملے اور مقامی کمیونٹی کے اشتراک سے کیا تھا۔ مگر فطرتس مز یس سہ تی کر قرآن تہ ونان تی روٗمٕتۍ وٮ۪سنٲے تتھ تراوان پننہِ یِمن منٛز۔ Welcome, and rather I would invite her, the niece and dedication of Abdulhamid Rathar Sahab. Moদি sir, one minute, please. It was a reflection of who you truly are. اخلاق و کردار سے Now I would request Abdul Majid Sheikh Sahab, member of Lagi, تیرے ہنرمند مسافر ہے ہم، اور یہی ہنرمند as a PM Shri school. This achievement stands as a living testimony. it was the occasion that brings us together. Dr. Gustaf from class 8 will now present a speech about our headmaster's class. اور آج کا دن میں بولوں گا جب تک اس کا ہم نے یہاں from the civil society, be it the respected teachers from this Advani Sahab, who has served this zone as zonal education officer. We thank you for making this school not just an institution but a family. Headmaster Mr. Abdulhamid. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ آج 31 تاریخ ہے، 31 مارچ 2026۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارے ایک بہترین استاد جن کا نام عبدالحمید راٹھوڑ ہے، ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بوائز مڈل اسکول مازہمہ، آج اپنی سروس سے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کا سپر انوویشن ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اساتذہ صاحبان اور فورم لے کر بچوں نے، پیرنٹس نے اور جتنے بھی اس ایریا کے لوکلز ہیں، سب کے سب آئے ہوئے ان کی بالکل انہیں الوداع کرنے کے لیے۔ میں یہی چاہوں گا کہ ایک استاد کے لیے جو ایک قوم کا معمار ہوتا ہے، اس کی رخصتی جو ہے ایسے ہی طریقے سے خونی جگر ژانگہِ زٲلِتھ وعدٕ پنُن پول، سُے چھُ نیرن وول چونکہ آج ہم بوائز مڈل اسکول مازہمہ میں ہمارے عزیز ساتھی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن PM شری بوائز مڈل اسکول مازہمہ کے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن محترم عبدالحمید راٹھوڑ صاحب سبق دوش ہو رہے ہیں۔ چونکہ محترم حمید صاحب ایک دیانتدار، ڈیڈیکیٹڈ اور ہیلپ فل استاد رہے ہیں۔ میں اس کو پہلے سے ہی تقریباً جانتا ہوں، جہاں بھی اسے کام کیا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جو کمزور بچے تھے، جو غریب بچے تھے۔ ہاں، آج یہاں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول مازہمہ میں یہاں کے جو HOI عبدالحمید راٹھوڑ صاحب، اس کی سپر انویشن فنکشن چل رہی ہے۔ اس تناظر میں ہم یہاں آج زون ناربل سے وابستہ تمام اساتذہ کرام اور سول سوسائٹی ممبران اور یہاں اس سکول میں زیر تعلیم بچے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو ہمارے عزیز اساتذہ جو یہاں ریٹائر ہو رہے ہیں، اس نے یہاں اس سکول میں بہت محنت سے کام کیا، بہت لگن سے کام کیا، اور اس سکول کو اس نے اپنے ڈیڈیکیشن سے چار چاند لگائے، اور یہاں کے جو بچے ہیں
मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि ये स्कूल हमारे जोन में एक मॉडल स्कूल की हैसियत से उभर आया है और इसी तनाजुर में आज यहाँ ये फंक्शन चल रही हैं। और इसका एहतमाम यहाँ के जो स्कूली जो इस स्कूल में उस्ताद किराम हैं और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जो मुंतजमीन है, जिसमें यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट साहब हैं, और इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम से वाबस्ता बड़े बड़े लीडरान आए हैं इसको आज रुखसत करने के लिए, इसको हौसला अफजाई करने के लिए, इसलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस ज़मीन में कि एक टीचर जब रिटायर हो रहा है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम को कवर। गांदरबल जम्मू कश्मीर में एक दहशतगर्द को जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले में रात भर के तसादुम में मारा गया और ओपी अरहामा नामी ये ऑपरेशन रात को गांदरबल के अरहामा इलाके में मुश्तबा नकल व हरकत के बारे में मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट के बाद शुरू किया गया। फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जिसमें एक नामालूम दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी और सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके की तलाशी ले रहे। गांदरबल से मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आबपाशी की सहूलियात को बेहतर बनाने और ज़रूरी सरगर्मियों के लिए पानी की बिला तातिल फराहमी को यकीनी बनाने के एक अहम कदम के तहत सब डिविजनल इंतज़ामिया बेरवा की निगरानी में एग्री कलान मागा में तजावुज़ात हटाने और आबपाशी नहर की सफाई के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में महकमे आबपाशी, रेवेन्यू हुकाम और मकामी पुलिस समेत मुतअद्दिद महकमों के फ़ाल शिरकत का मुशाहिदा किया गया, जो मजबूत बैन महकमाना हम आहंगी की अक्कासी करता है। इस मौके पर मौजूद सीनियर अफसरान में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बेरवा तौफीक अहमद गाजी, SDPO मागाम, तहसीलदार मागाम और SHO मागाम, फील्ड स्टाफ और ग्राउंड टीमों के साथ दीगर मौजूद थे। واریاہ زمیٖن حظ تقریٖباً 10-12 کنال زمیٖن چھِ اَپٲرۍ تہِ اَسہِ وٕنکٮ۪س یُس ٲبی اوس تقریٖباً چھُ اورٕ آب مِلاوان کُنہِ جایہِ اَسہِ آب تقریٖباً واریاہ اَسہِ گوٚو واریاہ یَتھ چھِ تقریٖباً سٲری کھٮ۪وان اَکھ رَژھا کھٮ۪وان بغلو حالانکہِ یہِ ٲس تقریٖباً 10-15 فُٹ کۄل کھٔج حظ 15 فُٹ تقریٖباً کھٔج حظ أمِس حظ چھِ یِہوٚے پرٛابلِم کہِ پَتہٕ ژوٚم سُہ پانَے ذِمہٕ دار نیران بَتہٕ ؤری مِثال أمِس چھِ پٮ۪وان مٔنٛزۍ اَنُن وٕنکٮ۪س بَتہٕ وَن سا بہتر شُکر گُزار روٗد قسم خۄداے سُنٛد واریاہ زٔمیٖن اَدٕ اَمہِ لرزٕ بَنے اور لُکو باغ ہوا یہِ آسہِ تقریٖباً وٕنکٮ۪س اورٕ زٔمیٖن کنال 100 آسہِ تقریٖباً نزدیٖک ہاں خالی کر رہا ہے آج تقریباً ہو گیا سب وہ ختم تقریباً ختم اسی پانی کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا ہے بالکل ہر کوئی بنا کنٹرول کرتا ہے کام کرتا ہے یہ ندی کو اپنی طرف لیتا ہے سب جی ایکچولی اٹ از اے ویلکم اسٹیپ وی آر اپریشیٹنگ دی ایڈمنسٹریشن اسپیشلی SDM بیروا plus the Naib Tahsildar Birwa. We are highly thankful to them because this coal or this stream was encroached from the past, I think 5 to 6 years. Now it has been restored at its original position. It is going to irrigate. It will be very fruitful for the people that fall around this stream. جو یہ آج SDM صاحب بیروا نے یہاں پہ قدم اٹھایا ہے ہم اس کے بہت ہی
मतलब नायब तहसीलदार साहब वो के जो एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि ये जो स्टेप था it is going to prove very helpful, and it will bring peace, plus it will bring development to the area that falls around this stream. जी खुश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है इरिगेशन के लिए हमारे गाँव को के लिए पर्टिकुलर, एंड प्लस द अदर विलेज लाइक बटपुरा, कुचपुरा एंड अदर एडजेसेंट एरियाज़, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये नदी जो है, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स ही नहीं है पानी का, ये सिर्फ वाहिद सोर्स है जो हमारे गाँव को जाती है। इस ये जो मतलब इसको एनक्रोच किया गया था एट डिफरेंट प्लेसेस, नाउ इट हैज़ बीन रेस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉर दिस हम जो है we are thankful to the administration, especially to the SDM Birwa, plus Naib Tahsildar and the other officials who visited this place and ordered their officials to demolish the encroachments on spot. Now we would like to thank the administration as well as the concerned officials, because they have done a good job. That is how we wanted it to be done, and it has been done accordingly. Thank you. बस ये क्लियर इंशाल्लाह कोल गस क्लियर गसी बे बाकी पकन जमींदार गस पकनस रोज मौका सोरी ठीक पटन इम च पका पका ट्रैक्टर है जमीन छाना और फसल छाना ये गस पकन और बाकी छनस का को सास बुद करना सास बुद चेस्ट करना सासन मस हां मगर बड़ मुश्किल से गसा आप इन कोलस प्रॉब्लम गमस शामस परनावन से बे को एनकोरमेंट ते गयस आप खास होते पका के खास अच्छा परेशान गसा वनकस गि सोरी क्लियर इंशाल्लाह बिल्कुल खुश हम दुआ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ये जो हम हमारे एसडीएम साहब है बहुत ऑनेस्ट है, हम इसको दुआ करते हैं हमेशा 3 साल से बच्चे 76 शुमार वारिया 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 ये सान बचपन चीज पता कि पुरनान आमस एनक्रोचमेंट गयस एनक्रोचमेंट आज गई बचन तक सूर दशीन तो खोविद बचन तक वनकस खुश ये गो असल पे क्लियर गो सोरी के बस ये सड़क तक नार्बल तक वातान ये कोल यप रोड बटपुर पेटकानिम अगर कुचपोरा आरचंद्रमा सरसी एरियास हपोर ये आरचंद्रमा सारी प्रॉब्लम गसन सड़क तक गई ठीक किस गस क्लियर आरसन सान पगह और पन ये मटीरियल पकन और दान थल बाकी सोरी गस क्लियर इंशाल्लाह सोरी गस। सुनील डिम्पल ने NYCRE के यौमिया उजरत पर काम करने वालों CRCs, VTs, मौसमी असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 CPW CAPD लैंड डोनर्स असम्बली में ऐलान करदा हुकूमत को इस साल तमाम को बाकायदा बनाने के लिए मुबारकबाद दी। देखिए और मुझे यासिर और आशिफ और आफ्ताब, तौसीफ, अशफाक, मुझे वो दिन भूले नहीं है अभी, जिन दिनों में हम इतनी गर्मी में धूप में भूखे प्यासे नेशनल यूथ कॉर्प्स के तमाम बच्चे वहाँ पे त्रिकुटा नगर, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे रहे और हमारी किसी ने, लेकिन आज मुबारक की बात है, हमने ये वादा किया था कि जब तक नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का नहीं किया जाएगा हम आराम से नहीं बैठेंगे। और इत्तेफाकन सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर यासिर वो मैं उनका चाचा हूँ और उनके पिता मदन लाल जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, वो हमारे बड़े थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और आज मुझे खुशी है कि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है यासिर की क़यादगी में और आशिफ की क़यादत में, और ये सारे बच्चे पैन कर लीजिए, ये सारे बच्चे खुद मिलकर के आए हैं। अब आपका एक काम रहेगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे कोई रहने नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में या किसी भी समय आप वो ऑर्डर आपका निकल सकता है। आपको सबको मुबारक। और मैंने एक बात और भी सुझाव दी थी, अगर जब तक मंत्री साहब ने, सतीश जी ने आप सबको खुद ही आश्वासन दे दिया, अभी बात भी हुई है आपकी और लगातार आप लोग भी मसलसल अच्छी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स की। मुझे खुशी है कि मेरे भाई और ये भाई जो पुराने फिर से मिले हैं। मैंने एक बात और कही है कि जब तक इनका वो प्रोसेस शुरू होता है और उसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स जितनी देर तक मिलती हैं उतनी देर तक ये काम कर दीजिए कि इन बच्चों के जो
2700 रुपए से बढ़ा करके मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक 25,000 रुपया तो दे दीजिए, और वो जो सिस्टम है वो चलता रहे, प्रोसेस चलता रहे रिक्रूटमेंट। अब जब मैंने ये कहा, अच्छा सुझाव था कि नहीं? क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलने में थोड़ा सा समय, क्योंकि वेरिफिकेशंस करनी है और करेक्टर वेरिफिकेशंस करनी है, फॉर्मेलिटीज होती हैं। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स तो उन्होंने कह दिया कि जल्द निकल आएंगी, मिलेंगी, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। आप ही के बीच में कहा, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, हमने ये कह दिया कि जब तक ये नहीं होता प्रोसेस तो इनको गौर किया जाए, तेज़ी के साथ प्रोसेस किया जाए। और मुबारक है नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जिनको 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत तोड़ने के बाद निकाल दिया गया था, वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर को भी पक्का कर रहे हैं। वो आप भी अपने सारे, क्योंकि आप ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, समझे कि नहीं? मैं आपको सिर्फ नेशनल यूथ कॉर्प्स का नहीं समझता हूँ एम्बेसडर, आप सारे डिपार्टमेंट्स के साथ सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी पढ़ा लिखा है उनका मैं नेता समझता हूँ, सच्ची मैं कह रहा हूँ। और आपने उन तक यहाँ आवाज़ पहुँचानी है कि रहबरे खेल, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कीना जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको भी कह दिया कि आप सीजनल टीचर्स और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स का भी ऑर्डर कीजिए। लेकिन फिलहाल आपको मुबारक है यासिर, आपको मुबारक है, आपको आसिफ मुबारक है कि मेहनत रंग लाई और देर से आए, लेकिन इंसाफ अब मिल रहा है। गवाह ये लोग हैं। हमें पूरा यकीन है सतीश शर्मा जी से, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद भी एक यंग है और हम उनकी ज़ुबान पे यकीन करते हैं, उमर साहब की ज़ुबान पे यकीन करते हैं। जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है वो बहुत जल्द पूरा करेंगे और हमारी सर्विस को रेगुलाइज करेंगे और सैलरी नहीं। और आसिफ और एक आप थैंक्स करना किसी स्पेशल का भूल गए हैं। नहीं, आपका तो थैंक्स नहीं है, आप तो हमारे साथ ही आप आपको थोड़े बहुत बड़ा इनका रोल है, क्योंकि इन्होंने हमारी स्ट्राइक में भी बहुत बड़ा जितना भी इन्होंने किया है। और मुझे हमदर्दी पता क्यों आसिफ मुझे आप लोगों के साथ थी, मैंने उस जब आपने वहाँ पे ऑर्गेनाइज त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ धरने प्रदर्शन और भूख हड़तालें करते थे ना, मैंने वहाँ पे मैंने हाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर, और उसमें मैंने देखा कि हमारी छोटी छोटी बेटियां, बहनें, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल, वो बेचारी 2-2 महीने का बच्चा अपनी गोद में लेकर के आएंगे, वो आज तक मैं दिमाग से नहीं गुजरा। वो दर्द आप हर कॉज को सपोर्ट करते हैं जो जेन्युइन कॉज है। हमें हमेशा उम्मीद है आप इसी तरीके से जेन्युइन कॉज को सपोर्ट करते रहेंगे और खासकर यूथ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूथ जो है इस टाइम है। थैंक यू यासिर, थैंक यू आसिफ। अब आप खुले दिल से जाओ लोगों में और उनकी लिस्टें बना करके फटाफट तैयार करो। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।